वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स का हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अगला जो पार्ट हमें जो पढ़ना है अभी, दैट इज प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू लर्न इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। Regarding issue of shares also, I have said you there is a different procedure where things have to go step by step. एक एक करके बाद एक एक करके step by step हमें जाना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। We can't jump from first step to direct final step. If we have to go on the 11th step, we have to go one by one. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, राइट? खाना खाने बैठना, डायरेक्ट थाली पे बैठ के खाना थोड़ी खाएंगे। पहले जाएंगे, हाथ धोएंगे, बैठेंगे, थाली परोसी जाएगी, फिर रोटी तोड़ेंगे, सब्जी लगाएंगे, खाएंगे। तो हर चीज का एक प्रोसीजर होता है और वो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। सो वी हैव सीन द डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। नाउ लेट्स लुक इनटू द प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। There are in all 11 steps. There are all 11 steps in the process of issue of debentures. Issue of debentures के इस प्रोसीजर में पूरे 11 स्टेप है। We can't move from first step to direct 11th step. हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। So you have to go on the first step, complete the first step, then move on to the second step, then third step, then fourth step, right? Now direct the 11th floor, go floor by floor. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, फिर बाद में 11th फ्लोर, स्टेप बाय स्टेप। हां, नाही ठीक आहे, मी येतोय पुण्याला, आल्यावर भेटू। हां, ऑक्टोबर फर्स्ट वीक मध्ये येणार आहे पुण्याला, तेव्हा भेटू। ओके, येस, ओके, बाय। ध्यान दो पढ़ाई पे। परभणी प्रोसीजर फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप, पास अ रेजोल्यूशन। पहले स्टेप पे ध्यान दो। पहले फ्लोर पे पहुंचेंगे तो हम 11 फ्लोर पे जा पाएंगे। पहला स्टेप कंप्लीट करोगे, पहले फ्लोर पे पहले पहुंच जाओ, फिर बाद में छत का सोचना। फर्स्ट कंप्लीट फर्स्ट स्टेप, देन थिंक अबाउट टेरेस। तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है टेरेस में? सीढ़िया क्या? नो सीढ़िया। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, पॉइंट नंबर 1, पास अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पास रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। सबसे पहली बात, डिबेंचर्स इशू करने का अधिकार किसे है? हु हैज द हक? सड्डा हक इथे रख। हु हैज द हक? हु हैज द हक?
The board of directors, चुप रहे, distract, don't, no disturbance, please focus, ध्यान लो, ध्यान लगाओ, ध्यान. Pass a resolution in board meeting. Pass a resolution in board meeting. What is the first point we have? First step, pass a resolution in the board meeting. Point to be understood here is the borrowing powers regarding issue of debentures are given to whom? The borrowing powers regarding issue of debentures are given to the board of directors. The board of directors have the power to issue debentures. Can the board of directors directly issue debentures? No. First, they have to take decisions regarding the amount of borrowings. They have to take decision regarding amount of borrowings. Right? If the borrowing amount is in excess of the limit or the powers of the board of directors, they have to take the permission of the members by special resolution in the general meeting. Then after this, they have to decide on the terms and conditions of the issue of debentures. They also have to appoint the debenture trustee. After the appointment of the debenture trustee, they also have to execute debenture trust deed. They have to prepare prospectus. In the prospectus, name of the debenture trustee has to be mentioned. Also, credit rating has to be obtained, because every listed company issuing debentures publicly has to mention the credit rating in its prospectus or offer document. So step by step procedure में पहला step है passing of resolution in the board meeting. Basic idea or basic parts of issue of debentures are given to the board of directors. So पहला कदम कहाँ पर है? What is the first step we have? Passing of the resolution in the board meeting, जहाँ पर board meeting के अंदर ये resolution pass करवाया जाएगा that the company has taken a decision regarding borrowing money by issue of debentures. This is the first step. अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को हम अभी इसके बाद डिस्कस डिटेल में करेंगे. नेक्स्ट, होल्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. व्हाट इज जनरल मीटिंग? रेगुलरली ऑल द मेंबर्स हैव बीन कॉल्ड टुगेदर. रेगुलरली सभी मेंबर्स को जो है वो बुलाया जाता है और सभी मेंबर्स को बुलाकर कंपनी के सारे अफेयर्स, कंपनी के सारे कामकाज के बारे में बताया जाता है. स्टेप 2 पे हम ज्यादा भागोवन. स्टेप नंबर 2, होल्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, all the regular business transaction have been transacted. Now, extraordinary general meeting, but obvious, in case of emergency or in case of decisions to be taken very quick and fast, can you wait for the annual general meeting to be held? Let's time come for annual general meeting, then we will take the decision. तब तक बिजनेस कितना भी नुकसान में जाए तो चलेगा क्या? नहीं. जब कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि कोई डिसीजन क्विक लेने पड़ेंगे और उन डिसीजन का क्विक लेना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू टेक क्विक डिसीजंस about the company, then what will happen in that particular case? They have to hold an extraordinary general meeting. Extraordinary matters, urgent matters, important matters are discussed and passed in the extraordinary general meeting. Now, with respect to issue of debentures, the holding of extraordinary general meeting is connected with increasing the borrowing powers of the directors. Let's say the borrowing powers of the articles association is 1 crore. The board of directors in the board meeting have passed resolution for borrowing debentures up to 2 crore. Is it beyond their powers? Is it beyond their powers? Yes, it is beyond their powers. Now in this case, when it is beyond their powers, what they have to do, Kakade? They have to hold an extraordinary general meeting. Now in that extraordinary general meeting, they have to pass a special resolution regarding alteration of the article of the association, which will increase the power from 1 crore to 2 crore. And for passing special resolution, voting of more than 75% has to be obtained. 75% से ज़्यादा वोटिंग के द्वारा जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया जाएगा, उसके बाद
borrowing capacity will be increased from 1 crore to 2 crores, and the board of directors then will have the new power to borrow up to 2 crores. Before holding of the extraordinary general meeting, how much was the power given to the board of directors? It was 1 crore. कितना पावर था उनके पास? 1 करोड़. कितना पावर था उनके पास? 1 करोड़. राइट? उनके पास पावर था 1 करोड़, लेकिन जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे, उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करेंगे, क्या उसके बाद जो पावर्स है, कैन दे बी इंक्रीज फ्रॉम 1 crores to 2 crores? Yes. Once the articles of association have been altered, the board can now go ahead with borrowing excess of sum. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर में you have to get, in any procedure you have to go step by step. In any procedure you have to go step by step. Normally we cannot skip नॉर्मली किसी भी प्रोसीजर में हम कोई भी स्टेप को जो है वो स्किप नहीं कर सकते. वी डो नॉट कैनॉट गो डायरेक्टली टू 11th स्टेप. ये मैंने कहा है ना आपको. हाँ, लेकिन यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के प्रोसीजर में वी कैन स्किप स्टेप नंबर 2. वी कैन स्किप स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 को स्किप किया जा सकता है. बताओ क्यों और कब? जब बोरोइंग is within the limits or the powers of the board of directors. Already कंपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर 1 करोड़ रुपए तक की बोरोइंग करने का सोच रही है, और इतने पावर्स तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने ऑलरेडी दिए हैं या नहीं दिए हैं? यस, ऑलरेडी इतने पावर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी दिए गए हैं. नाउ इन दिस केस, डू यू रियली थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? Is it important to hold the extraordinary general meeting? The answer is no. So can I skip step number 2 in case the borrowing is made within the capacity of the board of directors as given in the articles of association? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, the answer is yes. We can skip step number 2 and we will directly go to step number 3 in case the borrowing is within the power of the board of directors. But if the borrowing is not within the powers of the board of directors as is given in the articles of association, what will happen in this particular case? We have to complete step number 2 regarding holding of general meeting and increasing the borrowing powers. Are we okay and fine? Are we okay and fine? Fine है क्या? Next, filing with the registrar of companies. What is the next point we have? Filing. Are? Pen is also not fine. Filing with registrar of companies. What is the next point we have? Filing with the registrar of companies. Now, before a company issues debentures directly, it has to prepare an offer document. What is the offer document which is to be prepared for issue of debentures? Same, it is prospectus. Prospectus is that offer document which is to be issued in case of issue of debentures. In case of issue of debentures. In case of issue of debentures, we need to register a document which is called as prospectus with the ROC. If the borrowing is not within the powers of the company, we have to pass a special resolution in step number 2. That special resolution in step number 2, in case of borrowing is out of the power of the board of directors, also have to be filed with the ROC. Are you getting my point? अगर issue of debentures within the powers है, तो ROC के पास हमें क्या सबमिट करना है? Prospectus. अगर borrowing within capacity नहीं है तो हमें सबसे पहले तो स्टेप नंबर 2 में जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है उसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी. फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस बनाकर फिर प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्टर करनी होगी. आफ्टर द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज रजिस्टर्ड विद द आरओसी, देन इट कैन बी इश्यूड टू जनरल पब्लिक. कैन अ कंपनी इन एनी केस, वेदर इट बी इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डायरेक्टली इश्यू शेयर्स और डिबेंचर्स? नो. और डायरेक्टली इश्यू द प्रोस्पेक्टस? नो. The prospectus with respect to issue of shares or issue of debentures has to be first
registered with the ROC, has to be first registered with the ROC. पहले उसे ROC के पास रजिस्टर करना होगा. ROC के पास रजिस्टर करने के बाद, ROC के पास रजिस्टर करने के बाद then it is to be issued to general public. Next, obtaining of credit rating. प्रोस्पेक्टस का नीचे 6 नंबर स्टेप दिया है. तो स्टेप नंबर 3 इज फाइलिंग विद रजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू स्टेप नंबर 2. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है रिगार्डिंग इंक्रीज बोरोइंग पावर्स, सेम हैज टू बी सबमिटेड टू द ROC. अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं होल्ड की जाती है, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड नहीं की जाती है, इज देयर एनी रेजोल्यूशन दैट इज टू बी पास्ड और इज देयर एनी रेजोल्यूशन व्हिच इज टू बी पास्ड और सबमिटेड विद द ROC? द आंसर इज नो. सो यू कैन स्किप स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 ऑल्सो. प्रोस्पेक्टस नीचे 6 नंबर के पॉइंट में है. प्रोस्पेक्टस नीचे 6 नंबर के पॉइंट में है. अगर बोरोइंग, प्लीज पे अटेंशन, अगर बोरोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स के अंदर है तो स्टेप नंबर 2 स्किप, स्टेप नंबर 3 स्किप. अगर बोरोइंग पावर्स में नहीं है तो फिर स्टेप नंबर 2 फॉलो करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पास करो, वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा, और फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है उसे ROC को सबमिट करो. उसे कहां सबमिट करेंगे हम? ROC के पास. ROC के पास स्टेप नंबर 3 में जो स्पेशल रेजोल्यूशन स्टेप नंबर 2 में पास होता है उसे सबमिट किया जाएगा. लेकिन अगर बोरिंग विद इन कैपेसिटी है तो ना स्टेप नंबर 2 होगा ना स्टेप नंबर 3 होगा, ना स्टेप नंबर 2 होगा ना स्टेप नंबर 3 होगा. नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, हाँ या ना? Now who provides credit rating? Every company which is borrowing debentures has to obtain credit rating from one of the credit rating agency. CRISIL Care are one of the credit rating agencies which provide credit rating to the companies. All the companies which have obtained credit rating, all the companies which have obtained credit rating have to mention that credit rating on the prospectus, which is an offer document regarding the issue of debentures. Every investor, just by looking at the credit rating, can easily understand the worth and the repayment capacity of the company. अब बात समझ लो, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ये दोनों भी वहां लिख के रखो. प्लीज राइट इट समवेयर, वहां लिख के रखिए. क्या लिखना है हमें? व्हाट डू वी हैव टू राइट? दैट पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ये दोनों कब आएंगे? ओनली व्हेन बोरोइंग इज इन एक्सेस ऑफ कैपेसिटी ऑफ BOD. बोरोइंग एक्सेस ऑफ BOD पावर्स. पॉइंट नंबर 2 और 3 को ऐसे मार्क करिए, एरो करिए, उसका लेके क्या लिखेंगे? ओनली इन केस ऑफ बोरोइंग in excess of BOD powers और beyond powers of BOD, है या ना? अगर विद इन द पावर से तो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 हमें कंप्लीट करने की जरूरत है क्या? नहीं. वी कैन जंप डायरेक्टली फ्रॉम स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 4. वी कैन जंप डायरेक्टली फ्रॉम स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 4, है या ना? वी कैन जंप डायरेक्टली फ्रॉम स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 4. नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, एंटरिंग इनटू अंडरराइटिंग अग्रीमेंट. अगला पॉइंट क्या है? एंटरिंग इनटू अंडरराइटिंग अग्रीमेंट. नाउ अंडरराइटिंग अग्रीमेंट कब लिया जाता है? जब कंपनी को ये श्योर नहीं होता, नॉर्मली नई कंपनी जो पहली बार अपने सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है, फिर जो कंपनी जो अपने डिबेंचर्स बहुत बड़े वैल्यू में इश्यू कर रही है, उन्हें ये गारंटी नहीं होती कि उन्हें 75% सब्सक्रिप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा. इश्यू ऑफ शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%.
इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है 75%। तो 75% हो या 90% हो, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो आ जाना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो पूरा की पूरा इशू क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को आए इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये इंश्योर करने के लिए कंपनियों के पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं अंडरराइटिंग अग्रीमेंट। अब अंडरराइटिंग अग्रीमेंट करना है फॉर एन इशू ऑफ डिबेंचर्स, has it to be done, is it to be done after issue of debentures or before issue of debentures? Before issue of debentures. Before the issue of debentures we have to enter into an underwriting agreement. Underwriting agreement हमें जो है पहले करना पड़ेगा with respect to issue of debentures. Now underwriting agreement if any has to be entered into. Underwriting agreement होने के बाद issue of prospectus, offer letter और letter of offer. Issue of prospectus when the issue of debentures is made to general public, and issue offer letter and letter of offer in case of right issue of debentures to its existing members or employees. Okay, next, open a separate bank account. अगला पॉइंट क्या है, ओपनिंग ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट। अगला पॉइंट क्या है, ओपनिंग ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स के पूरे प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए हमें सेपरेट अकाउंट लगेगा, वैसे ही डिबेंचर्स के पैसे बोरो करने के लिए सारे चीजें जो है अलग से एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करनी पड़ेगी। इसीलिए हम किसी शेड्यूल बैंक के साथ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के रिलेटेड एक अकाउंट ओपन करेंगे और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिलेटेड सारा पैसा, एप्लीकेशन मनी, बाकी के जो पैसे वो मंगाए जाएंगे, वो सारी चीजें जो है उस अकाउंट से ऑपरेट किए जाएंगे। सो ओपनिंग ऑफ अ सेपरेट बैंक अकाउंट इज ऑल्सो नीडेड। नेक्स्ट, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, वी हैव सीन इन केस ऑफ डिबेंचर्स ओवर सब्सक्रिप्शन अप टू 100% ऑफ द बेस वैल्यू कैन बी एक्सेप्टेड। 10,000 डिबेंचर्स के बदले अगर 20,000 डिबेंचर्स के एप्लीकेशन आते हैं तो क्या कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है क्या? द आंसर इज यस। But in case of issue of shares, can a company accept application? Can a company accept application in case of issue of shares? The answer is no. The answer is no. The answer is no. The company cannot accept shares in excess of the issue of share application in excess of the shares which are being issued. Only in case the SEBI gives permission, hardly we can accept excess of 10% application. Okay, but in case of issue of debentures, excess application in case of oversubscription can be accepted up to 100%. Up to 100% of issue of debentures. Okay. Next, अभी जो एप्लीकेशन आए हैं, इतने एप्लीकेशन के ऊपर सारा जो पैसा आएगा, ये सारा का सारा पैसा हमें कहाँ जमा करना पड़ेगा? एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, holding of board meeting. What is the next point we have? Holding of board meeting. Again, एप्लीकेशन आने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चलेगा कि कितने सब्सक्रिप्शन आए हैं। इज देयर ओवर सब्सक्रिप्शन, इज देयर फुल सब्सक्रिप्शन, इज देयर अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर अंडर फुल सब्सक्रिप्शन। इसके मुताबिक ओवर अंडर फुल सब्सक्रिप्शन के मुताबिक फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल टेक डिसीजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। Next, hold board meeting and finalize the allotment formula. After finalizing of the allotment formula and allotment of debentures, what is to be issued? Debenture certificate. When is debenture certificate to be issued? Debenture certificate is to be issued within 6 months from the completion of date of allotment. But in case of issue of share certificate, the issue of share certificate has to be completed within 2 months from the date of completion of issue of share certificate has to be completed within a period of 2 months from the date of completion of allotment of shares. In case of issue of debenture certificate, it is to be issued within 6 months from the date of completion of issue of debentures. है क्या बरोबर? आहे का बरोबर? सॉरी, अलॉटमेंट वही ना यार,
ऐसा क्या समझ लिया, अगर भावनाएं समझो ना कभी कभी। क्या किरण, भावनाएं नहीं समझती तुझे? तू है मेरी किरण, फिर भी नहीं समझती तू? हाँ किरण, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंप्लीट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर कंप्लीट होने के 2 महीने के भीतर शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर कंप्लीट होने के 2 महीने के भीतर शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट होने के 6 महीने के भीतर डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, making entries in the register of debentures. When we issue debentures, when we complete issue of debentures, when we complete allotment of shares, when we complete issue of share certificate, finally what we record we maintain in case of shares is register of members. In register of members, name of the persons holding the shares appear and who tend to be the members of the company. In the same manner, after completion of issue of debenture certificate, a record has to be maintained as to register of debenture holders, which will state the details regarding all the debenture holders holding the debentures of the company. तो प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। किसी भी प्रोसीजर पे स्टेप बाय स्टेप जाना है। वी कांट जंप डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू 11th फ्लोर। पहले फ्लोर से डायरेक्ट 11th फ्लोर पे डायरेक्ट जंप नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट पेरिस से टेरिस, टेरिस से पेरिस नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। संयम रखो, सब्र का फल मीठा होता है, हमेशा ही मीठा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो। पहले 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट पीएचडी करता बोले तो जमता नहीं, वक्त लगता है हर चीज को। एवरीथिंग टेक्स टाइम। क्या बोले, पहले शादी फिर डाइवोर्स, डायरेक्ट क्या भाई, डायरेक्ट तलाक तलाक तलाक। हाँ, बड़ा दिलचस्पी है बीच वाले स्टेप में। हाँ अजमेरा, कुछ बोले तुम? अजमेरा, यू सेइंग समथिंग? शादी प्रोसीजर बताओ। पार्किंग लेवर गंदे। अच्छा, आपलं राहिलंय लग्न? कुठं करायचं? डलहौजी? हाँ, इश्नो के साथ घर बनाती कहाँ? डलहौजी में, बर्फ में, फर्स्ट क्लास। शादी बाकी है ना अभी हमारी। अभी तो बोलेंगे एंगेजमेंट, कोर्टशिप पीरियड चल रहा है हम दोनों का। वो क्या बेबी पे भरोसा नहीं, झटपट मतलब झट मांगनी पड़ गया। इधर उधर चुप। शादी ऐसे लोग पहले शादी करते हैं। जो लोग बोलते थे मुझे शादी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, उम्र भरने से पहले उतावले रहते, तैयार थे शादी करनी है शादी करनी है शादी। मैं भी बहुत बोलता था शादी नहीं करनी है। कर लेने के बाद समझता क्या कर लिए। हाँ? प्रोसीजर समझो, दिमाग मत लगाओ। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का प्रोसीजर समझना है हमें, बाकी कोई प्रोसीजर नहीं समझना है। शर्मा's कॉमर्स क्लासेस। पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? पास रेजोल्यूशन। कहां चलो, पहला पॉइंट समझने के लिए। हाँ चलो 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 चलो, बड़ी तालियां दे रही किरण, बड़ी तालियां दे रही। फर्स्ट पॉइंट, पास रेजोल्यूशन इन द board meeting. Pass resolution in the board meeting. What is the first point we have? क्या?
चलो पहला पॉइंट कंप्लीट करते हैं, पास और रेजोल्यूशन इन द बोर्ड। शांति, ठीक है। पास रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, पहला पॉइंट है पास रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अब बोर्ड मीटिंग के अंदर बहुत सी चीजें हमें कंप्लीट करनी है। बेसिकली द बोरिंग पावर्स हैव बीन गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोरिंग पावर्स किसे दिए गए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर्स दिए गए हैं, अधिकार, मुझे हक है, मुझे हक है। तो passing of resolution in the board meeting, in the board meeting following resolution will have to be passed। बोर्ड मीटिंग के अंदर ये जो रेजोल्यूशन है वो पास करना है। अब क्या क्या चीजें ही, क्या क्या ही करना पड़ता है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने में, समझ लो क्या क्या करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। चलो थैंक यू सो मच। करो बातें, करो करो।